صبح سویرے بھی نس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور طاہرہ خوش آمدید آپ کو کہیں گے. اور ہفتہ اور اتوار آپ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں 10 سے 12 اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسرے ٹی وی چینل سے ہٹ کے آپ کو مارننگ شو میں انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کس سمت جا رہی ہے. ہر طرف ناؤ ڈیز بری خبریں ہیں. ہم اکثر سانحات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, لٹ گئے. تو یہ ہمارا مقدر ہی کیوں, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زیادہ تر ہم اپنے شو میں جنرل ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, ہر طرح کا ٹاپکس ہوتا ہے ہمارے اس شو میں. اب ذمہ داری کون لے گا؟ یہ تو وہ گل پلازہ جب جلا تو بہت سارے ایسے مناظر ہم نے جو زندگی میں نہیں دیکھے تھے لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھ لیے, اور جن کے لال گئے, جن کے بیٹے گئے, جن کے بھائی گئے, جن کے خاوند گئے, جن کے گھر کے سربراہ گئے, پوری فیملی بھی. آپ 1 کروڑ ان کو دیں یا 50 کروڑ دیں, آپ بندہ نہیں لا کے دے سکتے ان کو. وہ ماں کو وہ بیٹا چاہیے, آپ کا 1 کروڑ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا. لیکن یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو اس کے لیے اب سندھ حکومت لیٹر جاری کر رہی ہے 100 بلڈنگوں کو کہ جی اب آپ یہاں پہ احتیاطی تدابیر لگائیں, آپ یہاں پہ پریکاشنز کے بورڈ لگائیں. کچھ وقت تک چلے گا, یہ پھر سب ویسے کا ویسا ہو جائے گا. شاید ہم میں کچھ کمی ہے, حکمرانوں میں کمی ہے, بہت ساری چیزوں میں بات کریں گے. تعارف کرواؤں, سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ڈاکٹر فرقان احمد. آپ پریزیڈنٹ ہیں ہیومن رائٹس ویلفیئر فرنٹ آف پاکستان, پریزیڈنٹ کراچی, ممبر لائنز کلب. سر خوش آمدید کہیں گے سر. السلام علیکم. ان کے ساتھ سر نجمہ اکبر ہیں ہمارے ساتھ, آپ سیکریٹری ہیں KMC, ممبر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. جی وعلیکم. ان کے ساتھ جی شبنم اشفاق, ڈسٹرکٹ چیئرپرسن لائنز انٹرنیشنل, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ فجر فاطمہ ہیں, آپ CEO ہیں الفجر بائی اینڈ بلڈ ریئلٹر وائس پریزیڈنٹ PPS. بیوی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور یہ لوگ ڈفرینٹ جو پروفیشن سے سرگرمیوں میں بھی اکثر ہمیں پیش نظر آتے ہیں. اور آج کے کراچی میں یہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب ہم اس پہ بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کی نا دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. فرقان صاحب جی, کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے کراچی میں؟ ویسے تو بہت خوبصورت موسم ہے, آج اتوار کی صبح ہے, اور لیکن دل بہت دکھے ہوئے ہیں کیونکہ حادثات پہ حادثات, واقعات پہ واقعات. اور اگر میں اس سلسلے میں کوئی ابتدائی کلمات کہوں تو میرا خیال ہے بے جا نہ ہوگا. اس کو ہم سب کچھ حکومت کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. ہے بے شک ہے حکومت بھی, لیکن میں اس کو 50-50 کے تناظر میں گنتا ہوں. کیونکہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی نیگلیجنس یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت سی کمیاں اور برائیاں ضرور ہوں گی ہیں, ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے ہیں. تو 50% میں امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے, لا دنیا بھر میں ایک ہے, قانون سب کے لیے ایک ہے. امپلیمنٹیشن آف لا جب تک نہیں ہوگا کوئی بہتری کا امید نہیں ہے. یہ میرے پہلے اور آخری حروف ہیں اس حوالے سے. وہ جو پھر وہ امپلیمنٹیشن حکومتیں 50% میں اسی چیز کا, جب ہم سختی کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتے ہیں. نہیں, اس کے لیے ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی لوگوں کو, ٹھیک ہے, پبلک کو. اپنی ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس طرح کے عادی ہو چکے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ. لے کے رشوت پھنس گیا, دے کے رشوت چھوٹ جا. مجید لاہوری نے کب سے کہہ دیا تھا, کتنے سال پہلے. تو ہم تو اس امید میں ہیں کہ اسی کائنات میں ہے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر, کہ بلند ہو کے بھی آدمی یعنی خواہشوں کا غلام ہے. ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہیں, ہمیں سب کا دیکھنا ہے, ہر ایک کو ہر ایک کا دیکھنا ہے. اب پڑوس میں کون رہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا, یہ حال ہوتا جا رہا ہے اس بالکل ایسا ہی ہے. میرا ایک ٹاپک بہت ہاٹ ہے جو ہر جگہ میں کہتا ہوں اور بات گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتی ہے. ہماری نئی نسل کڈنیپڈ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑی برائی اس وقت جو ہے وہ یہ ہے.
सोशल मीडिया, मोबाइल और सोशल मीडिया। बिल्कुल यानी मुझे बड़ा अफसोस होता है, और मैं 4 ख़वातीन के नरगे में हूँ इस वक्त, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें आज की माँ का किरदार बहुत बड़ा हो सकता है। नहीं, माँ के साथ बाप का भी किरदार आपका है, बिल्कुल है। दोनों का इक्वल है। देखिए, दिन में कौन ज़्यादा साथ होता है? कौन ज़्यादा साथ होता है? माँ होती है। तो माँ को बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना है। हमारी नस्ल किडनैप्ड हो चुकी है। तो कैसे इस चीज़ से जो है बच्चों को टाइमिंग बांधें, उनके टाइमिंग फिक्स करें कि आपको इतनी देर मिलेगा, उससे आप छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। यही अक्सर एक मुहावरा है ना, समय के साथ चलो, तो चलना पड़ेगा, मजबूरी है। जब टीवी आया था तो लोग बहुत कंजर्वेटिव जो थे वो टीवी नहीं रखते थे, लेकिन बच्चे जहाँ था वहाँ छुप के जाने लगे। और अगर टीवी रख भी दिया तो वो मूवीज उस वगैरह दौर नहीं से देख वो सकते वक्त थे। मैंने Yes, देखा, हाँ। तो वो फिर लोगों को मजबूरन घर पे लेना पड़ा टीवी। ठीक है, इसी तरह फिर डिश आई, केबल आए, मुख्तलिफ चीज़ें आई। नज़र रखनी है, नज़र रखती है माँ, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम घर पे होती है। बाप की सख्ती अपनी जगह है, बाप का रोब अपना होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि माएँ नहीं रख पा रही इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब ज़्यादा माएँ नहीं रख पा रही। अच्छा, लेकिन तो मेरा ये कहना है कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो वो खुद भी कमा रही हैं, वो खुद भी घर में नहीं होती, एग्जैक्टली, तो वो फिर ऐसे केस में क्या जॉब होगा? वाली होती हैं। नहीं तो देखिए, आजकल और ये 50 ज़्यादा आजकल है इन चीज़ों रेशो में ऐसी सॉफ्टवेयर्स भी आ गई हैं कि आप लॉक कर सकते हैं। ओके। बच्चों को नहीं पता होता। आप हर बच्चे के हाथ में टैबलेट है ना इस वक्त, वो गेम खेलते हैं, आप देख रहे हैं कि वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो लॉक नहीं है तो यूट्यूब भी खुला है, और फिर कुछ भी आ रहा है उसमें, कोई भी मटेरियल आ सकता है। कोई भी मटेरियल आ सकता एक फैक्टर ये भी तो है ना कि है। उसकी प्रिवेंशन के लिए यूरोप बहुत परेशान है, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप बहुत परेशान है कि इसको हल किया। उसके लिए वो उसके तदारुक भी पैदा कर रहे हैं, मतलब एक दवा के साइड इफेक्ट से बचने के लिए दूसरी, और दूसरे के बाद तीसरी, वो केस है। तो हो जाएगा कंट्रोल। कंटेंट जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं, जी, जिस तरह का मवाद हमारी सोशल मीडिया पर स्पेशली नशर हो रहा है, जिस तरह के हम ड्रामे बना रहे हैं, इनका कितना किरदार है? सर बहुत बड़ा किरदार है इनका, और इस हाल पे पहुंचाने को आप, मैं खुल के कहूँगा कि आप इस वक्त तलाक का रेशो देख लें। ठीक है, इंडियन ड्रामे लोगों ने देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो कसर पाकिस्तानी टीवी पूरे कर रहे हैं, चैनल्स पूरे कर रहे हैं ड्रामों में, ड्रामों के जरिए। अब नहीं देखते लोग कि वो 100 किस्तों में 3 दफ़ा मर मर के जिंदा हो रहे हैं। अब लोग रियलिटी, हाँ, लेकिन वो रियलिटी भी बड़ी भयानक है। सही, रियलिटी में मैं चले खातून से भी आप भी बताएं, आप भी इसमें वैल्यू ऐड करें कि वो जो हम कंटेंट दिखा रहे हैं, जो ख़वातीन घरों पे बैठकर ड्रामे देख रही हैं, ड्रामों वालों से भी जब पूछता है मीडिया तो वो कहते हैं कि हम थोड़ी ना तलाक़ें करवा रहे हैं, जी बिल्कुल, हम तो वो बना रहे हैं जो है, हम तो लेकिन आप रियलिटी कहानी दिखा जो रहे हैं। देख रहे हैं उसमें आप ये नहीं करेंगे, मतलब उनको देख के ये होता है कि इंसान आगे वो बढ़ माइंडसेट के बन रहा है ना, माइंडसेट बन रहा है, जहन साजी जिसे जहन- कहते हैं। फिर आप उसको देख के गलत लें तो वो गलत बात है ना। आप अच्छी भी बातें उसमें दिखाते हैं तो आपको अच्छी भी Yes. बातें भी तो सीखनी बहुत चाहिए सारी ना। positive, बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती हैं उसमें। लेकिन ये जो जहन साजी हो रही है, ये हम जब अपने घरों में देखेंगे तो ये आपको वो जरासीम कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मैं अक्सर वो मिसाल देता हूँ कि एक सेंटेंस मेरी वाइफ के मुंह से निकला, तो मैंने कहा यार ये वर्ड तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो तुमने पहले मुझे कभी भी नहीं बोला, ये वर्ड कहाँ से लिया, नहीं आप इसके छोड़ें इसको। मैंने कहा नहीं बताओ, फिर मुझे पता चला वो ड्रामे में मैंने सुना था। एग्जैक्टली। तो ये देखिए जी, ये होती है जहन साजी कि वो जो आप कंटेंट देख रहे हैं वहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है वो आप इतना गहराई से इतने अच्छा, सिर्फ ड्रामों की बात नहीं है साजिद सर, ड्रामों के अलावा भी जो सोशल मीडिया, ये जो टिकटॉक, बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं, सबसे ज्यादा ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ड्रामे हैं नो डाउट, लेकिन ड्रामों के अलावा लेवल है, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। बात एक ही है, बिल्कुल सही। ये तो पीक सिर्फ एक लेवल है। ड्रामे को टारगेट नहीं कर सकते ना कि ड्रामों में ही ये दिखाया जा रहा है, ड्रामों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नहीं, मैंने तो इसीलिए दिखाया था कि मोबाइल उसमें सब कुछ कर रहा है। हाँ, चले शबनम आफाक से भी बात कर लेते हैं। बीबी नजमा, अब कैसे हम इनकी रोकथाम कैसे की जाए? क्या टीवी देखना छोड़ दें? हल क्या है इनका? हम दूर होते जा रहे हैं, सोसाइटी हमारी बड़ी, जैसे सर ने कहा कि ये जो है ना बस को, लेकिन इसके बगैर लेकिन हम गुजारा सबके नहीं है। पास ये है और इसके बगैर हम जी भी नहीं पा रहे हैं, जरूरत भी है हमारी, तो क्या किया मुझे जाए अगर फिर? थोड़ी देर के लिए कोई कहे कि हम आपसे ये छीन लेते हैं, तो मेरे दो इसमें जवाब होंगे। एक तो ये बोलूँगा यार मैं तनहा रह जाऊँगा, यस, दूसरा मैं ये कहूँगा कि यार आज़ाद हो जाऊँगा। अब मैं तो मेरे तो ये कि यार या तो मुझे आज़ाद कर दो, और या फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है।
دیکھیں جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مطلب یہ چیز ایسی ہے کہ واقعی میں انہوں نے بچوں کو ماؤں سے دور کر دیا ہے اور ماؤں کو فیملی سے دور کر دیا ہے. تعلیم کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کہ میرا واسطہ تو ہر وقت ماؤں سے پڑھتا رہتا ہے, بچوں سے پڑھتا ہے. تو یہ سب سے بڑی نیگلیجنسی ہے مدرس کی کہ وہ نہیں دیکھتی ہیں بچوں کو بالکل بھی. تو میرے خیال میں تو یہ کیا کرتی ہیں وہ؟ ڈرامے دیکھتی ہیں؟ ڈرامے نہ بھی ہوں تو وہی ٹک ٹاک اور وہ فیس بک اور بچہ رو رہا ہے تو موبائل دے دیا, بالکل بس موبائل دے بچے دیا. چپ ہو گئے, اور اس کے بچے بعد اپنا اب لگی ہوئی ہے ڈراموں وہ پہ لوگ اتنا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں. وہ بس جو شارٹ scrolling ویڈیوز, ہوتی ہے, ریلز وغیرہ, جی جی بالکل ریلز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ کافی ہیں بگاڑنے کے لیے ماحول کو, ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے. وہ ماں جو پہلے بچے کی تربیت کرتی تھی باتوں باتوں میں, وہ کھانا کھلا رہی تھی, کھلا رہی ہوتی ہے تو وہ 4 باتیں اچھی بھی بتا رہی ہوتی تھی, بیٹا ایسے کھاتے ہیں, اور سنتے بھی تھے, بچوں کو بھی سننا چاہیے. اب میں بڑا تگڑا اور تیکھا سوال کرنے جا رہا ہوں بی بی سے, کیونکہ آپ نے بولا کہ میرا اکثر ماؤں کے ساتھ جو شرع معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے, بڑی گہرائی ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف اور دیئر ان لاس. وہ جو ماں ہے اس کی ماں کا کتنا کردار ہے؟ مطلب ساس کا؟ جی ہاں, اس کی ماں کا کتنا کردار ہے؟ نہیں, ماں تو ماں ہوتی ہے, چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا بچے کی دادی ہو. تو لیکن آج کل نہیں, بیٹی کے گھر, سر کا سوال یہ ہے کہ نانی کا کیا رول ہوتا ہے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, کتنا ٹائم دیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں سر؟ اگر آج کل کی نانیاں بھی تو وہ والی نانیاں آ رہی ہیں نا Yes. جو ہمارے پاس دستیاب ہیں, نانیاں بھی وہی آ رہی ہیں. چلیں, مطلب وہ نانیاں جو پہلے تھی وہ والی جو گزر گئی وہ نہیں ہے اب؟ جی وہ نہیں ہے اب تو وہ کہیں دستیاب ہی نہیں ہے. یہ ہے بڑا, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اور ہم لے آئیں سر, آپ نے کیلکولیٹ کر دیا, رزلٹ پہ لے آئیں آپ, اینڈ رزلٹ پہ کہ جو ہماری تربیت کرتے تھے اور ہمیں جو چیزیں معلوم ہے وہ ہمارے بچے اب مطلب یوں دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی انہونی سی بات کہہ دی ہے. انہیں کسی شاعر کے بارے میں نہیں پتا, انہیں کسی سائنسدان کے بارے میں نہیں پتا, انہیں کسی بھی اپنے اچھے مطلب ہمارے کسی ہیروز کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں نہیں پتا. سوال کروں آپ سے, آپ نے کہا کہ وہ نانیاں اب دستیاب نہیں ہیں. ان نانیوں کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی اتنی. آج کی تو نانی پڑھی لکھی, بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن وہ نہ پڑھے ہونے کے بعد بھی وہ اپنی جو ان کے تجربے تھے نا, جو ان کے تجربات تھے, وہ ہر چیز کے متعلق, یعنی مطلب ان سے آج بہتر کی جو نانی ہے اس سے لاکھ گنا بہتر ہے. آج کی نانیوں سے وہ والی نانیاں بہتر ہیں, یہ ان سب کا خیال ہے ہمارے مہمان. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اس موقع پہ. پرانی نانیاں, اگر نانی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ تعلیمی یافتہ نہیں تھی لیکن تربیت یافتہ تھی. لیکن 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تربیت یافتہ, ایک کاغذ حاصل کرنے کے لیے, کاغذ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی کام کے لیے چاہیے کاغذ, اس کے لیے ہم غلطیوں پیچھا رہتے ہیں, لیکن تربیت پر توجہ کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات کریٹ ہو رہے ہیں. چلے فاطمہ مجھے یہ بتائیں کہ نا وہ جو ہسبینڈ حضرات ہیں نا, مرد حضرات, وہ یہ کہتے ہیں یار وہ میری وائف تو ٹھیک ہے, وہ بیچاری لگی رہتی ہے, لیکن جب اس کو کال آ جاتی ہے نا اپنی ماں کی, بس پھر ختم. نہیں ساجد صاحب, میں یہ کہوں گی کہ سب جگہوں پر ایسا نہیں ہے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ فون کو پریورٹی نہیں دے رہے ہوتے, اپنے ہسبینڈ کی بات سن رہے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی کال آتی چلے جاتے. ماں ایک ایسا رشتہ ہے نا, بس اس کے آگے سب ختم ہے. لیکن دیکھیں ایک فیملی بھی تو چلانی ہے. اگر میں پورے دن اپنی ماں سے بات کرتی رہی تو میرے بچے کہاں ہیں؟ پورے دن کی تو بات ہی نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, کیسز ایسے ہیں نا, اس کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل آج کل مائیں لگی رہتی ہیں. ہاں بالکل ایسی ہے سر, لیکن میں کہتی ہوں ساجد صاحب کہ دونوں کو ٹائم دینا چاہیے. آپ کی ماں کی جگہ اپنی جگہ ہے اور آپ کی اپنی فیملی کا ٹائم وہ ان کا اپنا ٹائم ہے. ہم تو بڑے بوڑھوں سے پوچھتے رہتے ہیں نا, پھر میں نے بہت ساری ماؤں سے سوالات پوچھے تو ان ماؤں نے یہ کہا کہ ہمارے ٹائم پہ تو ایسا ہوتا تھا لڑکی بیاہ دی, چل بھائی. بالکل ایسی ہے. پھر جب وہ آیا کرتی تھی کبھی کبھار 2 ماہ میں 6 ماہ میں, تو جب سورج غروب ہوتا تھا تو ہم ڈائریکٹ نہیں, ہماری بڑی بوڑھیاں انڈائریکٹلی کہتی تھی چلو بیٹا شام ہو رہی ہے. انڈائریکٹلی بچوں کو کہتی تھی چلو گھر جاؤ, تمہارے پاپا آنے والے ہوں گے, تو انڈائریکٹلی بیٹی کو کہتی تھی چلو اب اپنے گھر جاؤ. اور آج کل شاید یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہیں جانا, بریک ادھر ہی رکنا ہے, رات کو بھی ادھر ہی رک جاؤ. تو یہ وہ تربیت شاید ہوتی تھی جس کی آج کمی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے وقفے کے بعد. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج
की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते और जिक्र कर रहे थे हम हमारी सोसाइटी, हमारे अखलाक, इक़दार, बड़ों की रिस्पेक्ट, अखलाकियात हमारी शायद वो 80s और 90s वाली नहीं रही। अब हम जब से 2000 में दाखिल हुए और फिर अब हम 26 में आ गए, तो वो शिकवे हैं सर 90s वालों को आज की जनरेशन से। और फिर सिर्फ आज की जनरेशन को शिकवे क्यों, जो बड़े हैं वो अपना उनमें बड़ापन, बुजुर्गी, ठहराव है, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम बता देते हैं यार क्या बात है, क्या तरबियत की है माँ बाप ने यार खातून की या उस साहब की। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े होते हैं, हम कहते हैं यार अभी इसको तरबियत की ज़रूरत है, इसको अभी कुछ पता ही नहीं है। तो स्पेशली जब आप वो मैं निकाल रहा था फैक्ट्स एंड फिगर, फुरकान साहब ने कहा तलाक़ों का रेशो आप चेक करें तो सर डेली कराची शहर में डेली की बुनियाद पर 32 से 35 जो डॉक्यूमेंट होते हैं खुला के लिए, तलाक के लिए, फिर इसका महीना और सालाना रेशो निकालें कि वो जो सक्सेस मैरिज का जो सीन हम सुनते थे अब वो नहीं है सर। शादी चल रही है 6 माह, साल, 2 साल। कहीं हम बड़ों से सुनते थे ये तो भाई ज़िंदगी भर का रिश्ता है, तो वो ज़िंदगी भर के रिश्ते अब किधर गए। फिर वो जो टूटने वाली शादियाँ हैं, फिर वो लड़कियां कहती हैं जी अब जो दोबारा मैं शादी करूंगी तो मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी, और अगर बदकिस्मती से उसको दोबारा हस्बैंड अच्छा उससे भी बुरा मिल गया फिर क्या होगा, ये कोई नहीं सोचता। फजर फातिमा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम अब सोशल मीडिया वाले हो गए हैं, वहाँ पे बड़ी गाड़ी देख रहे हैं तो उसको बड़ा सैल्यूट, रिक्शे पे आया बोलेंगे इधर 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 देख लेंगे, वैल्यू ही नहीं कौन है, मेरे पास नहीं आया भाई ये। बिल्कुल। एक हमारे हैं वो दोस्त, तो बुजुर्ग हैं, DHA में रहते हैं, नाम इसलिए नहीं ले रहा, बहुत सारे दोस्त हैं भाई, तो वो अक्सर उनको अपने घरों पे बुलाना पसंद करते हैं जो बड़ी गाड़ी वाला हो। बिल्कुल ऐसी वो छोटी गाड़ी वालों को अपने घरों पे बुलाना ही पसंद नहीं घर के करते। बाहर जो है बहुत सारी जी हाँ। कतार हो। तो जब उनसे किसी ने पूछा, बोलता है यार वो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो आए ना वो बड़ी गाड़ी पे बराबर वाले भी देखें तो बोलेंगे यार ये बड़ा आदमी है। क्या ये हमारी सोच रह गई है। कैसे चेंज करें, हम मसनूही क्यों हो गए हैं, बताएं। बस मैं क्या कहूँ साजिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही हो गया है, सिर्फ दिखावा हो गया है आजकल। ठीक है, सब लोग दिखावे पे ही बिलीव करने लगे हैं कि जो अच्छा दिखता है बस वही सब कुछ है। मतलब लाइक आपका जो हार्ट है, आपकी जो नेचर है, उन सारी चीज़ों को साइड पे रखकर बस सारी जो मसनूई चीज़ें हैं इनको वो किया जाता है। बाकी जो आपकी मुझे तो समझ भी नहीं आता मैं क्या अच्छा, फैमिली में भी ये होता है, कोई ज्यादा अगर रुतबे में ऊपर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। बहनों में भी ऐसा है, बहनों में भी ऐसा है, अगर किसी बहन की शादी अच्छे घराने में हुई है, उसका शौहर ज्यादा अर्निंग करते हैं और कुछ का नहीं, तो फिर उसमें भी बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारा सोशल मीडिया जो दिखा रहा है ना, तो वही सारा कुछ हो रहा है। जैसे साजिद साहब ने कहा था कि हमारे ड्रामाज आजकल ऐसे हैं, तो हम बहुत कुछ वहाँ से गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव चीज होती है ना उसे हम जल्दी पिक कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। यहाँ पर जो हमें दिखाया जा रहा है हम लोग वही सब कुछ पिक कर रहे हैं। इवन कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सारी चीजों को कैच कर रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है, इसी तरह से करना चाहिए। पहले के जो पेरेंट्स होते थे ना वो इन सारी चीजों को नहीं सबको इक्वल रखते थे हर चीज में। ऐसे हाँ जी, बस अगर कोई बेटा ज्यादा अच्छा कमा रहा है और किसी बेटे की जॉब नहीं है, मैसेज क्या देंगी, कैसे इस मसले में, इस मुआशरे में सुधार कैसे आएगा? ये हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। हम सबको मिलकर अपने आप को सुधारना होगा। ठीक है, हमारे बड़ों को हमारा साथ देना होगा, हम सबको मिलकर चलना होगा, मिलकर इस सोसाइटी को सुधारना होगा। और जो हमारी सोशल मीडिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सारी चीज़ें, सबके साथ मिलकर हमें अपनी इन चीज़ों पे काम करना होगा, तो ही हम सुधर पाएंगे, तो ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। चलें, ये थी सर फजर फातिमा। और जहेज़ की लानत ने हमारी जान नहीं छोड़ी तो फिर दीगर मामलात ने सर उठा लिया। तो
जो न्यू कपल्स हैं 18, 20, 22, 24 साल के बच्चे बच्चियाँ जब शादी के बंधन बंध जाते हैं तो ये एक नया एक्सपीरियंस होता है हर किसी का। फिर वो देखते हैं कि जी रिश्तों का बदलना कैसा। वो मुझे किसी ने कहा यार मैंने जब शादी की तो मेरी वालदा का मुझे प्यार डबल हो गया, मेरे बहन भाइयों की मुझसे मोहब्बत 4 गुना बढ़ गई। मैं बड़ा परेशान कि मैं इस घर में पहले ख़ास नहीं था, मैं बड़ा ख़ास सा हो गया। तो बाद में मुझे पता चला कि वो सब कुछ ख़ास क्यों था। बस फिर मेरा घर टूट गया, फिर मामलात हो गए, फिर मुझे पता चला कि अपने भी बदल जाते हैं। फिर इसको कैसे मैनेज करें, बड़े बूढ़ों से हम तजुर्बा लें कि वो जो आपकी ज़िंदगी है उसको कैसे लेके चलना है। तो बुज़ुर्गों के साथ सर बैठें, मशवरे लें, अच्छे प्रोग्राम्स देखें, अच्छे नॉवेल्स पढ़ें, अच्छा कंटेंट पढ़ें और सब्र करें। आज के नौजवानों को सब्र की मैं तनकीद करूँगा, तलकीन के आप जल्दबाजी का फैसला ना करें, क्योंकि जब आप बहुत सारे जवान तलाक देके फिर पछताते हैं, फिर रोते हैं यार कोई ये फायदा नहीं है वो बाद जी में पछताने का। मैं जी वो गुस्से में आ गया था। गलती से निकल गई, गुस्से में निकल इस गई। चीज़ से दूर हो जाएं, हस्बैंड एंड वाइफ इस पे बात ना करें, आप इसको भूल जाएं कि ये कोई वर्ड भी है, तो शायद आप ये ज़िंदगी चला सकें। सब्र का मुजाहरा करें, ठंडे हो जाएं, ये दोनों के लिए मेरा तो मशवरा है। बाकी हमारे यहाँ लोग बैठे हैं। और माओं के लिए स्पेशल सर मुदाखला ना करें अपनी बेटियों के घरों को पर। जिंदगी गुजारने दें, मैं उनको अपनी सिलसिले में, फैमिली हाँ। को जी सर, चलाने फुरकान दें। साहब आपके तजुर्बे से बहुत सारे जी, लोगों जी, का बिल्कुल। फ़ायदा होगा। और स्पेशली मैं बताऊं आपको, बहुत सारा ऐसे गांव देहात हमारी कराची में मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनीज़ में आप चले जाएं, खून रेजी हो रही है इस पे। पिछले साल का वाक़या है ये, आपके लाइन्स एरिया में मुझे किसी ने कहा साजिद भाई एक बिल्डिंग आई है बराए फ़रोख्त। मैंने कहा कितने की? बोला इतने की। मैंने कहा यार ये तो बहुत सस्ती है, मुझे दिलवाओ। लेकिन मैंने कहा मैं पहले विज़िट करूँगा। जब मैं विज़िट करने गया तो मैंने देखा यार ये तो दरवाज़ा बिल्डिंग के साथ है। मैंने कहा नहीं, इधर तो आना ही नहीं है। फिर मुझे पता चला वहाँ पे एक कत्ल हो चुका है। फिर वो कत्ल किस बात पे? इन्हीं बातों पे हुआ। Oh my God। इन्हीं बातों पे वो इसने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, उसने मेरी बेटी पे ये इल्ज़ाम, वो मियाँ ने छुरी निकाल। क्या कहें? मैं इस सिलसिले में अब मैं दोबारा फिर उस टॉपिक पे आ जाऊंगा। इन हालात पे भी आज की पढ़ी लिखी माँ का बड़ा कसूर है। यस। आप लोग एग्री करेंगे यकीनन। देखिए शादी के बाद यूँ समझ लें कि यूँ मिसाल ले लें इसकी कि एक नए पिंजरे में एक मुर्गी जब जाती है तो उसको पंजे मारती हैं मुर्गियाँ, है ना? अच्छा वो उसको बर्दाश्त कर जाएगा कुछ दिन तो वो एडजस्ट हो जाते हैं और उनमें आपस में वही प्यार मोहब्बत हो जाती है। वही मिसाल आप इंसान की भी ले लें। बच्चियों को मैं आज की ये नसीहत करूँगा कि छोटी मोटी बातें अपनी माँओं से तस्करा ना करें, बर्दाश्त खुद सीखें। बर्दाश्त करें। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? कुछ दिनों बाद जब बात बढ़ती है माँ उसको मल्टीप्लाई करती है। बिल्कुल तुम सही। आ जाओ, तुम हम पे भारी नहीं हो, हाँ जी। तुम एक को खिलाना भारी नहीं है। ये है माँ पूरे दिन की की गलती। रूटीन पूछती हैं क्या पहले किया माँ आपने? और बाप रुखसत करते कहते थे कि अब हड्डी बोटी सब इनकी है, अब शिकायत लेके नहीं आना, तो जनाजा आएगा। जनाजा आएगा वरना नहीं आएगा। ये सब हमने देखा हुआ है। आपने भी, आप सब ने, हमने देखा है जो अभी जिस एजिस के हैं, जो हम सब देख चुके हैं। तो इन चीज़ों पर हमें आमादा करना होगा, नई बच्चियों को समझाना होगा ये कि एडजस्ट करें, शिकायत न करें। मैंने ऐसे बहुत घराने देखे हैं जिन्होंने अमल किया। कंप्लेंट्स कर भी रही हैं मिसाल के तौर पर कि तो माँ को समझाना चाहिए। मेरी एक बात सुने, अगर वो कंप्लेन कर भी रही हैं कि मेरे साथ ये मसला है तो उसको बहुत ज्यादा वो करना लिंगर गलत ऑन नहीं है, करना चाहिए। ऐसा जी, नहीं जी। होना चाहिए। तो वो उतना टाइम अपने बच्चों को भी नहीं दे पाती बाज़ औक़ात जो ख़वातीन जैसे हैं। सर अब कॉल जाती है तो भाई आ जाते हैं लेने, माएँ आ जाती है लेने, आप चलें हमारे साथ, हम आपको लेने आ गए। और भाई अपनी बीवियों के बिहेवियर नहीं देख रहे होते। Yes। भाई बहन के लिए लड़ने मरने को तैयार होते हैं। हाँ। ये चीजें, ये सब तरबियत का हिस्सा तो है। फिर वो जो सर आप जब लेने आ जाते हैं जब, तो फिर वो जो नौकरी पे गया हुआ मौसूफ है, जी जब वो आएगा तो उसको वो घर वाले बताएंगे वो आपकी चलिए। बस चलिए। अच्छा भाई क्या हुआ था? वो इस पे लड़े थे, वो कोई बच्चों पे, वो कोई सालन रोटी पे, और ये छोटी छोटी सी बात थी। छोटी बातों पर आजकल ये हो तो रहा है। फिर वो खातून कहती है कि मेरे मियाँ ने मुझे छोड़ क्यों दिया? तो वो कहता है यार ये क्या कोई इखलाकियात है, मुझे किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो माँ कहती है कि ठीक है जी, आपको अब आप दूसरी शादी करें।
वो जो अना है ना सर, वो फिर नहीं मरती, फिर वो जाके किसी बड़ी तबाही जो हम सोसाइटी में देखते हैं। बिल्कुल ऐसे तो कोशिश करें सर इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और मैंने अपने बोझ ना इसीलिए ये करें, लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल अपने किया कि बच्चों को आज जीने की दें। तमाम बच्चियों को मेरी तरफ से एक नसीहत है, हाँ। अगर उस पर अमल करेंगे तो घर खानदान कामयाबी के कामयाब ज़ामिन बन रहेगा, जाएंगे, क्योंकि बहरहाल माँ का किरदार बहुत बड़ा है और मेहमारान मिल्लत जो बनते हैं वो माँ के किरदार से ही बनते चलें हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं सर गुल प्लाजा पे, और इस तरह के दोबारा वाक़यात ना हों, हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए। हमारे जब आग लगी तो बहुत सारी कोताहियाँ थी मैनेजमेंट की, इंतज़ामिया की, और फिर बदकिस्मती के साथ मुझे तो अफसोस ये है कि वो जो साहब जिसका नाम तनवीर पास्ता है, मेरा कोई उनसे ना इख्तलाफ है ना मैं उनको इतना जानता हूँ, वो वहाँ पे मेंटेनेंस भी लेते थे, साल से बैठे हुए हैं, और वो बहुत बड़े मायनाज बिजनेसमैन हैं, होंगे भाई अपने लिए, लेकिन वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, कितने उन्होंने मामलात सेट किए थे, मीटरों की तारें कितनी पुरानी थी, एंट्रेंस क्यों बंद हुए हुए थे, और जो बाहर ठिए पथारे लगे हुए थे उनसे कितने पैसे लिए जाते थे, धंधा जो हो रहा था, अब वो मगरमच्छ के आंसू रोए जा रहे हैं। और फिर सब उसको कह रहे दादा हम आपके साथ खड़े हैं, कोई उससे भी तो पूछे कि पिछली बार भी आरजे में आग लगी थी 2021 में, वो भी तुम्हारा था, ये भी बिल्डिंग तुम्हारी थी, कई तुम्हारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो तुम कितने कसूरवार हो, और तुम क्यों बैठ गए हो मेंटेनेंस लेने, सालों से तुम क्यों बैठे हो, ये तुम्हारा काम तो नहीं है। उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, सब खामोश हैं। यार ये इंतज़ामी जब जहाँ वाक़या होता है, वो जो करंट वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको पहले बुलाएं कि यार आप बताएं, आप लोग यहाँ पे सालों से बैठे हुए हैं कि यहाँ पे इंतज़ामात क्यों नहीं थे, कोई जवाब दे नहीं है। आप किसको कसूरवार समझते हैं? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा जैसा कि 50-50% है। देखिए गवर्नमेंट भी ये KMC फायर और कंजर्वेंसी टैक्स लेती है, उसके एवज क्या मिलता है कि इतनी देर में फायर ब्रिगेड आएगी या एम्बुलेंस नसीब ही नहीं होगी। सर वो तो कहते हैं ना, आप तो ये बात हो कि रहने ही दें, वो तो पानी नहीं होता उनमें, वो आए थे, वो कह रहे पानी खत्म होगा, अब दोबारा लेने जा रहे हैं, जदीद केमिकल आ गए, ड्रोन उड़ते हैं। आपको याद होगा कि 2 दहाई पहले एक स्नारकल एक थी इतने बड़े शहर में, और उस पर भी लड़ाई झगड़े होती थी कि किसी के होते थे कि ये KMC की मिल्कियत है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। ये तो हर इलाके में फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए लाजमी, और इसमें लोगों का कसूर बहुत बड़ा है। देखें दुनिया भर में कानून, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक तो लोगों की तरबियत होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो अब हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। इसी हवाले से ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम एहतियात तो एहतियात करके बच सकते हैं। आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि चेक करे, लगा के नहीं देगी, आपने लेना है, क्यों नहीं चेक होता। देखिए कानून का डंडा हर वक्त ज़रूरी है होना, वो नहीं है, वो भी पैसे लेके माफ हो जाता है कि ठीक है महीना जा रहा है या साल जा रहा है। जो हकीकत है वो सब वाकिफ है उससे, हकीकत है, उसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ना इदारों को ना लोगों को। बहुत सारी सर ख़वातीन भी वहाँ जल गई। लम्हा फ़िक्रिया है, वो बेचारी आई थी शॉपिंग करने, एक खातून तो सुनने में आ रहा है कि वो, हाँ, और एक तो प्रेग्नेंट खातून जी, वो मेरे दूर की रिलेटिव थी। बताएं, उसका बेचारी का देखें फर्स्ट वो होना था। तो ये किस पे क्या गुजरी, कोई इंसानियत नहीं थी। मुझे याद है वो बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हो गई थी, उस वक्त मैं कोचिंग में पढ़ता था। मैं कोचिंग से जब वापसी आ रहा था तो मैंने तब भी ये मनादर अपनी आंखों से देखे कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग रहे थे, कोई किसी को बचाने नहीं आ रहा था। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, ख़वातीन मदद के लिए, वो रिक्शों वाले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उनको उतार के फेंक के खुद भाग रहे थे, भाई मेरी गाड़ी बचे, तू जिसकी भी उतर, मेरी गाड़ी से आप उतरो। तो ये हालात हमने पहले भी देखे हैं, और बदकिस्मती है ये हमारी कि हम आज तक वहीं के वहीं हैं। आप क्या कहेंगी बीबी? ये सब कुछ आज भी वैसे का वैसा है। अपनी जान बचाओ, जो मरता है मरे। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी, हड्डियों की गठड़ियां मैंने देखी, बिल्कुल, उस पे लड़ाइयाँ, बिल्कुल। मैंने तो ये मंजर भी नहीं देखे कभी।
इस बार देखा मैंने इंसानों की हड्डियाँ उठा के वो जो लवाहिकीन है वो जा रहे कि जाके दफना दें। अब आपको क्या पता ये किसकी है, और सोचे ज़रा उस मंज़र को कि जब ये वहाँ पे आग लगी होगी। असल में सानिया गुल प्लाज़ा ये एक इमारत में हादसा नहीं था, ये हमारी इज्तमाही गफलतों का अलमिया है। हम मतलब स्कूल और एजुकेशन जो वाबस्ता लोग हैं, स्कूल कॉलेजेस जामियात, तो हमारे पास तो एक बड़ी तादाद होती है बच्चों की जिनकी हम तरबियत कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं। तो हमने सिर्फ निसाब अपनी किताबों तक, अपनी डिग्रियों तक महदूद रखा हुआ है, और इसके अलावा कोई उनको सिविक अवेयरनेस है ही नहीं। इसको निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि कल वो कानून की पासदारी, सबसे बढ़कर तो कानून की पासदारी तो कोई नहीं इसको फॉलो ही नहीं करता। यही हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो फौरन अपने एक रैपर भी अपने बैग में रख लेते हैं। हाँ, क्या ये बात, गिरा पे बात। बहुत जबरदस्त बात की आपने। और वाकई। मैं बता वही दूं, हम मैं भी बता दूं, मैं खुद जब जाते तो प्लास्टिक वहाँ के पे वो अवेलेबल नहीं है भाई। हाँ, तो वो सब हम सर गाड़ी में जा रहे थे तो 12-15 साल पहले, तो मैंने कहा यार ये शीशा खोलो, मैं कुछ फेंक रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे वो कह रहे साजिद यहाँ नहीं फेंकना, अरे हाँ, मैंने कहा यार याद आ गया। तो हम वहाँ कितने होते हैं खुद कॉन्शियस होते हैं कि नहीं यहाँ तो रैपर भी नहीं फेंकना, चालान लग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रूल्स बने हुए हैं हाँ। वहाँ पे, रेगुलेशंस, रूल्स, सारी चीजें बनी हुई हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हमारे लिए बड़े मसले मसाइल हैं। एक तो सब बड़ा चुभता हुआ सवाल है कि ये सब कुछ मेजॉरिटी इन कामों की सिर्फ कराची ही में क्यों। इस बात को मज़ीद मैं नहीं आगे ले जाऊंगा। अगली बात मैं करने जा रहा हूँ कई इदारों के सोसाइटीज़ में भी हमारा राब्ता रहा मिलना कि भाई डस्टबिन्स नहीं है आपके यहाँ, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हेरोइन सी उठा के ले जाते हैं। आप देखें कराची के बड़े बड़े बागात, बड़ी बड़ी ग्रिल्स, वो चोरी हो जो नहीं है, हेरोइन सी चोरी कर गए। अरे भाई कैसे कर गए, आप कहाँ हैं? सिक्योरिटी इदारे के सोच- ये जो इदारे फुरकान कहाँ साहब थे? ने बात की तो मुझे वो पुराना कराची याद आ गया जी। तब भी तो यही हीरोइन जी थे सो कॉल्ड, तब नहीं, हम भी हेरोइन की तादाद बढ़ गई ना अभी। यही लोग थे। तो तब क्यों नहीं चोरी होते थे? उसको मैं सानिया गुल प्लाजा से मिलाता हूँ कि मेटल का कलेक्शन करके 2 डंपर गायब है, उसमें भी पैसे बनाए लोगों ने। किसी ने इन्वेस्टिगेशन की, गए धंधा है सर, बहुत सारे लोगों का ये धंधा है, और धंधे में कहते हैं सब चलता है, पैसा आ रहा है आन दे, एक वफा लेते हैं, बस ये बात है। आ जाए। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और चूँकि हमारे इस लाइव शो में कॉल्स भी आती हैं और हमारे यहाँ से भी बहुत सारी कॉल्स जाती हैं। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है जुल्फ़कार हाले पोटो साहब ने, और आप राइटर हैं, शायर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे सर जुल्फ़कार हाले पोटो साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे। आपकी आवाज कट रही है। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी 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 सर, जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जुल्फ़कार हाले पोटो साहब, ये आप और मैं जिस शहर में रहते हैं, जिसको कहा जाता है ये पाकिस्तान की मईशत की शह रग है, जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, ये क्या शहर अब सूबा सिंध से इख्तियारात लेकर वफाक की तरफ इसको मुंतकिल किया जा रहा है, या कि अभी इसको हम अफवाहें समझ लें या सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? सर देखें, वफाक की तरफ ले जाने का तो तस्वुर ही नहीं है, चूंकि एक फेडरेशन है, आइन की तशरीआत हैं, तो इतना आसान नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी वोट बैंक के लिए और अपने अपने जो हमदर्द हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए एथनिक लाइंस पर इस किस्म के बयान देते हैं दोनों तरफ से।
असल में प्रॉब्लम ये है कि दूसरे सूबों की निस्बत सिंध, फॉर एग्जांपल पंजाब में देखें आप, एथनिक कम्युनिटीज हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पख्तूनख्वा में भी आप देखें मुख्तलिफ किस्म की वहाँ है, लेकिन इस किस्म की डिवाइड कहीं नहीं है। और कराची तो मेरे ख्याल है कि ज़ाहिर कैपिटल है सिंध का, तो असल बुनियादी प्रॉब्लम कराची का वही है जो दुनिया के सारे कॉस्मोपॉलिटन और मेगा सिटीज का है, वो ये है कि शहरी हुकूक जो है बुनियादी तौर पर उसका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम हर तरफ से उसकी एथनिक जो है वो शाइज बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं जुल्फकार हालेपोटो साहब, और मैं चाहूंगा कि ये जितना अहम सवाल है उससे ज्यादा तगड़ा और कैटेगोरिकली आंसर आपका होना चाहिए। आपने कहा कि महरूमियां हैं कराची के शहरियों की, अगर हम सिंध के दीगर शहरों की बात करते हैं, वो कहते हैं हम तो आपसे ज्यादा महरूम हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी है? तो आपको क्या लगता है कि सिंध के दीगर जो देही एरियाज हैं वो बड़े मुतासिर हैं, कराची वाले कह रहे हैं हमारे साथ बड़ी नाजायजी है, बड़ा जुल्म है, तो ये इसका तदारुक क्या सर? आपने इंतहाई अहम सवाल किया। असल में यही बुनियादी सवाल है जो शहरियों को समझने की जरूरत है कि एक तो सबसे पहले मैं जब सुनता हूँ कराची के हुकूक जो है वो नहीं मिल रहे बाकी सिंध के लोग, तो मैं खुद कहता हूँ कि ये खुद जो बाकी सिंध के लोग हैं उनके साथ भी जो है ना बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि उनके साथ भी इतना जुल्म है जितना कराची के साथ है। तो सिर्फ कराची के जुल्म को गिनवा कर बाकी सिंध के जुल्म को ना गिनवा, तो ये उन सिंधियों के साथ भी बड़ी नाइंसाफी है बुनियादी तौर पर। तो बुनियादी तौर पर बात ये है कि जो डिवाइड एंड रूल है ना सर, जो बरतानिया का डिवाइड एंड रूल सिलसिला था, तकसीम करो हुक्मरानी करो, वो सिलसिला पाकिस्तान से भी गया नहीं है। जमहूरियतें भी आती रही हैं, अब भी हम जमहूरी सिस्टम में रहते हैं और मुख्तलिफ और सिस्टम भी आजमाए गए। बेसिकली जो शहरी हुकूक हैं उनको अगर देखा जाए, उनको मद्देनजर रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि कराची में खुदा न खास्ता आप कितने भी गरीब हैं, लेकिन रात को 2 बजे भी कोई इमरजेंसी है तो आपको लाली में, कोरंगी में, औरंगी में, गुलशन में, अजीजाबाद में, अंचोली में आपको कहीं ना कहीं से रात को 2 बजे कोई दोस्त गाड़ी भी दे देगा, आपको कोई अस्पताल भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची प्रेग्नेंट है नंगर पार्कर में, काछो कोहिस्तान में, कंथकोट में, किसी इंतहाई जो है वो कबायली इलाके में या कच्चे के इलाके में, वो तो लोग वही कुल पढ़ लेते हैं कि अभी ये थोड़ी देर में मर जाएगी, चूंकि ना ट्रांसपोर्ट है ना एम्बुलेंस है। ये मैं यहाँ रोकूंगा आपको। ये जो आपने पॉइंट रेज किया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो आपने रेज किया, और मैं समझता हूँ हजारों नहीं लाखों ऐसे मुतासरीन हैं, स्पेशल खवातीन, तो इनके लिए सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी चूंकि इस वक्त मुस्तकिल 18-16 साल से पावर में है, तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पर जाती है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, ये कोई बात नहीं हुई कि जो हमसे पहले हुकूमतें थी उन्होंने ये नहीं किया। भाई अब आपकी हुकूमत है, आपने करना है। ये गेम जो है ना, इसी ने शहरियों को बहुत परेशान किया है। और मैं आपको कराची की एक छोटी सी बात मजीद ये बता दूं, पूरी दुनिया के कैपिटल्स मैंने भी देखे, दुनिया में कैपिटल्स में जो उनकी जो मालकियत है, क्या वो उनके मसाइल नहीं है, वो उनको पता है किस स्टेट, वहाँ प्रोविंस को ज्यादातर स्टेट्स कहते हैं, किस स्टेट का ये हिस्सा है, किस मुल्क का हिस्सा है। वहां पर पूरी दुनिया के, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो इस्तांबुल ले लें, आप लंदन ले लें, आप वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क ले लें, वहाँ सारी दुनिया से लोग आते हैं, जैसे हमारे कराची में आ रहे हैं लोग आते हैं, इंटरनल माइग्रेशन होती है, एक्सटर्नल। तो ये जो उसमें आपको शहरी हुकूक की बुनियाद पर पूरी तर्ज हुक्मरानी रखनी पड़ती है। विजिटर आया, उसके भी वही हुकूक है, वो आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी होटल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, शहरी का भी यही हक है। अब हम क्योंकि 3-3.5 करोड़ के शहर को मैनेज नहीं कर सकते, फिर हम उसमें एथनिक गेम्स खेलते हैं। फिर एक ये जुमला भी बड़ा अजीब है कि पूरा पाकिस्तान ये मिनी पाकिस्तान है, तो मैं तो कहता हूँ कि एनएफसी में और जो है मिनी पाकिस्तान अगर है तो फिर केपी, बलूचिस्तान और पंजाब भी, चूंकि वहाँ के भी हमारे बाशिंदे, हमारे मौजूद दोस्त हैं, बहनें, भाई हैं, वो भी यहाँ रहते, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल दें मिनी पाकिस्तान में, ताकि शहर के लोगों को चीजें मिलती रहे। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है जुल्फकार हालेपोटो साहब, ये जो हर तरफ से तबाही, बर्बादी और सानेहात को जिक्र किया जा रहा है, जो मनाजिर हम टीवी स्क्रीन पर हमने देखे गुल प्लाजा के बाद, हड्डियों की गठड़ियाँ हमने देखी, ये हमने माजी में नहीं देखे थे।
آپ کو نہیں لگتا کہ 18 سال 17 سال کی طرز حکمرانی اور فائر بریگیڈ اور فائر اسٹیشن اور وہ جو عملہ تھا ریسکیو کا اس کے پاس وہ ویل اکوپڈ بھی نہیں تھا، ان کے پانی بھی بار بار ختم ہو جاتے تھے اور پانی سے متبادل بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں، ہمارے پاس جدید ڈرونز ہیں، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کی انسان کی زندگی بچانے کے لیے وفاقی صوبائی اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کے جان بچانے کے لیے آ سکتے تھے؟ لوگوں کو کہتے کہ جی آپ چھتوں پہ آ جائیں، چھتوں سے ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا۔ بنیادی دیکھیں یہی تو بنیادی سوال ہے نا کہ ریاست کا شہری کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ سسٹمز ہے یہ شہری کو کتنی اولویت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم نے ابھی ڈیجیٹل دور ہے، ہم روز ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جگہ میں ایک بندہ پھنس گیا تو ریاستی ہیلی کاپٹر چلی جاتے ہیں ایک آدمی کو ریسکیو کے لیے۔ یورپین ممالک، امریکن یعنی کہ جو مہذب ممالک، یہاں اتنی جانیں، تو یہاں پہ یہ سب کہاں تھے؟ یہاں پہ یہ سب کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے کہ یہ ریاست طے کرے کہ یہ ملک شہریوں کا ہے یا صرف وسائل کا ہے۔ وسائل کھانے شہری، دیکھیں ایک بات سر آپ بنیادی طور پر ضرور سمجھیں کہ جب تک ہم اس شہر میں لوگوں کو شہری سانس لینے والا جینے والے شہری کے بجائے اس کو صرف ہلکا انتخاب سمجھیں گے نا کہ یہ میرا ہلکا انتخاب ہے، اس کو ہم کموڈٹی سمجھیں گے، تب تک یہ مظالم ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں ایک خدا نخواستہ کشتی الٹ جاتی ہے، ایک خدا نخواستہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیں جھلستے بچوں کو ماؤں نے کس طرح گلے سے لگایا ہوگا جلنے سے پہلے، بڑی ماؤں نے بیٹوں کو لگایا ہوگا، والدین، یعنی کہ آپ گھنٹوں جھلستے رہے، یہ کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ میں کہتا ہوں حکمرانوں کو میں تو سر یقین کریں روز کوئی نئی تصویر دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ اپنی بہن کے لیے جہیز لینے گیا، یہ بڑا آدمی اپنی پینشن کے پیسوں سے کسی کے لیے، تو آپ کو نیند نہیں آتی تو یہ حکمران جی کیسے رہے، ان کو سونا کیسے آتا ہے، ان کو کھانا کیسے آتا ہے؟ اور پھر آپ سر آپ تو جینے کی اور سونے کی بات کر رہے ہیں، حالے پوٹو صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات کی اتنی گراوٹ ہے کہ کوئی استعفیٰ تک نہیں دیتا۔ ایگزیکٹلی، پوری دنیا میں کلچر ہے، آپ فوراً استعفیٰ دیں، اس کے بعد انکوائری ہو جو بھی ہو، یہ تو بڑی بنیادی اخلاقیات میں آتا ہے۔ کچھ لوگ تو ذمہ دار ٹھہرا جائے، اب وہ جیسے ہم وہ کھو کھیلتے ہیں تو بس ایک دوسرے کی طرف بال پھینکے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو بیسیکلی مورلی بینکرپٹ سسٹم ہو گیا ہے سارا سر۔ اور شہری اتنے، میں روز نئی تصویر دیکھتا ہوں، ڈیلی مجھے گھر میں بچے دکھاتے ہیں نئی تصویر، آج یہ تصویر آئی ہے، یہ بچہ گیا تھا، یہ امی گئی تھی، یہ بڑا گیا تھا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ یہ قومی المیہ ہے، اس پر حکمرانوں کو اب بھی اگر انہوں نے دیوار پر لکھا نہیں پڑا تو میرے خیال میں یہ بڑا المیہ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے تجزیے سے یہ بھی بات آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو شاید خود کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اس کو عوام کی پلس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ عوام کیا چاہتی ہیں۔ ٹیکس تو آپ لیتے ہیں، ڈیلیور کیا کرتے ہیں؟ بڑھائیں گے جی آگے سلسلے کو۔ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، متعدد ادوار آپ نے ملکی سیاست اور صحافت کے دیکھے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سید اسلم پرویز میں جوائن کیا۔ سر خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ اور گل پلازا پہ سر آپ بھی وہاں موجود تھے، اچھا کیا کیا معاملات تھے؟ ایمبولنسز کی آواز تھی اور چیخو پکار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صبح بخیر۔ میں نے مارننگ شو میں بھی جوائننگ کی ہے، لیکن ظاہر میں کراچی کا باشندہ ہوں، اور کراچی کی جو رونقیں ہیں، یہ کراچی یہ وہ شہر ہے جو 24 گھنٹے جاگتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں 24 گھنٹے، لیکن ہماری یہاں پہ جو نااہل انتظامیہ ہے اور جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے، میرے خیال ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ میں تو جو دیکھتا چلا رہا ہوں ابھی تک، جو میں محسوس کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں کہ اتنی ہائی رائز بلڈنگوں کا یہ شہر ہے، بلند و بانگا بلڈنگیں بنتی چلی جا رہی ہیں بلند سے بلندتر، لیکن ان کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی نہ شہری انتظامیہ نے نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایسا انتظام کر کے رکھا ہے۔ ایک اور بھی چیز ہو رہی تھی اسلم صاحب، میں گوش گزار کرتے چلوں آپ کو، کہ جہاں حکومت کو لعن طعن ہو رہی تھی، جی جی جی، وہاں پر جماعت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پہ بوسٹ لگا کے وہاں پر بھی کیا جا رہا تھا یہ سب کچھ، جس پہ کچھ شہریوں نے کہا یار یہ ٹائم تو بوسٹ کا نہیں تھا۔ ایسا ہی
बिल्कुल सही, ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए असल में ये शहर सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है। जो कराची के रहने वाले तो किसी हैं की लेकिन जान से बालातर सियासत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। यह तो कई जाने गई। हाँ, बहुत जाने गई। और इतने आपने मुझसे पूछा कि आप भी वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल उस रात को तो मैं नहीं पहुँच सका बर वक्त, हालांकि मैं एक प्रोग्राम में था जिस दिन ये रात को आग लगी है, लेकिन मुझे सुबह थोड़ा लेट आवर्स में मुझे पता चला तो फ़ौरन पहुँचे थे वहाँ पे। और जो हमने अपनी आँखों से जो हमने वहाँ मनाजिर देखे हैं, मैं अगर लफ्ज़ों में बयान करूँ तो मेरे ख्याल वो अल्फाज अब मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि एक हफ़्ते से, ये हफ़्ता हो गया, आज इतवार में हम बैठे हैं, पिछले हफ्ते कोई हादसा हुआ था 17 तारीख की रात को, और जब से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ के हम प्रोग्रामों में और वैसे भी चलते फिरते इंतज़ामी लिहाज से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी चीज़ का हमें सुराग नज़र नहीं आ रहा अभी तक कि किसकी गलती है। लेकिन मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उस मार्केट के हवाले से कि जो वहाँ की इंडोर जो इंतज़ामिया है, जिसको आप यूनियन कहते हैं, मैं तो पहले भी एक दो प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि मैं उसको इंतज़ामिया को मुद्रे इल्ज़ाम ठहराऊँगा। उसके जो सरबराह है वो ख़ुद भी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि आजिमाल में भी वो बैठते हैं और यहाँ भी वो इंतज़ामी लिहाज से यहाँ पे मौजूद है, उनकी पूरी टीम उसी लिहाज से। तो सिंध गवर्नमेंट, जैसे फरगान साहब ने भी कहा कि 50-50 के मामला है इस शहर को देखने के लिए इंतज़ामी तौर पे और वैसे भी। वो जो तनवीर पास है उनको एक नई बिल्डिंग बना के दी जा रही है जी। तो ये जो तनवीर पास्ता और उनकी जो टीम है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत नाजुक सा मरहला है ये। इस वक्त बहुत बात भी करनी है तो हमें बहुत एहतियात से करनी है कि हम किसी की दिल आज़ारी भी ना करें। सलमान इकबाल ने कहा कि 5 अरब मैं भी दे रहा हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है। और ऐसी, ये तो कराची, आपने एक बात सुनी होगी भाई के सलमान साहब की बात सुनी कि कराची जो है ना मांगने वाला शहर नहीं, ये देने वाला शहर है। और तारीख़ हमारी बताती है कि एक ज़माने से जब भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई भी आफत आई, कुछ जल्जला आया, कुछ भी तूफ़ान आया, तो मेरे ख्याल कराची से ट्रक भर भर के जाते हैं। और कौन देता है? गवर्नमेंट तो नहीं देती ना। यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं या चाहने वाले हैं पाकिस्तान से, मोहब्बत करने वाले, मैं तो ये कहूँगा ये वो शहर है जिसने पाकिस्तान बनाया। आज मैं ये बात कर रहा हूँ, इस शहर में वो लोग रहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और ये सबको मानना पड़ेगा कि वो इसी शहर में है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और उनके दिल भी कुशादा है इस लिहाज से, इसलिए वो उन्होंने कभी भी इन मामलात में अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की। उनको सिर्फ एक पाकिस्तान का लफ्ज़ नजर आता है, ग्रीन फ्लैग नजर आता है जिसपे स्टार जो ठीक है। और फिर ये जो पाकिस्तान हमें मिला है, हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, और वो कुर्बानी आज भी जारी है। आज भी हमें फितनल ख्वारी धमाके करते हैं, आज भी वो कराची केपीओ तक आ जाते हैं, आज भी वो हमारी बेसिस में चले आते हैं, आज भी वो हमारी गाड़ियों को बमों से उड़ा रहे हैं। जहाँ एक मुल्क की फ़ौज ऐसे फितनों से लड़ने में मसरूफ़ हो, और फिर वहाँ पे इंटरनली जो हुकूमतें हैं और वो अपना काम अगर सरअंजाम ना दें, तो फिर सर तनकीद तो बनती है, बिल्कुल बनती है, और तनकीद बनती भी नहीं है, और तनकीद फिर होगी आप पे, और होगी, और छत पे चढ़कर होगी। बताया जाएगा सबको कि आप अगर कहीं आपकी नाअहली है तो फिर आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन बदकिस्मती से मुर्तज़ा वहाब ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, ऐसे ही इस्तीफ़ा दे दूं, किसी के बाप का माल है, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, मैं नहीं दे रहा इस्तीफ़ा। ये यहाँ पे अखलाकियात हैं, और ऐसे लोग भी इधर से इसी मुल्क में गुजरे हैं कि जिनको कोई ताना पड़ा तो उसने कहा ये लें जी आपकी वजारत, ये लें जी आपकी CM-शिप, नहीं रहना हमें। ऐसे लोग भी गुजरे हैं। लेकिन हम आप कहाँ जा रहे हैं? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
ब्रेक के बाद से खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेगमेंट आ चुके हैं। अब ज़रा पसंद नापसंद पे बात कर लेते हैं। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं साजिद साहब मायूसी फैला दी आपने, खुशी की बात भी किया करें, तरक्की की बात भी किया करें। तो चले जी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं पहले खातून से। नजमा, कोई फेवरेट आपका सियासतदान कि यार ये सियासतदान जब था तो कुछ बेहतरी थी? देखें, हम तालीम से वाबस्ता लोग हैं। नहीं वोट तो किसी को देते हैं ना हम। जी नहीं, बस कोई खास नहीं। अच्छा, एक भी नहीं है कोई फेवरेट? सबसे आपका दिल बर्दाश्त है आप? बिल्कुल, ऐसे ही समझ ले। अच्छा, ये बताइए कि सबसे फेवरेट आपका कोई ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट कि जिसको लगता हो कि आपको ये पढ़ के या पढ़ाकर मजा आता है? पढ़कर क्यों, पढ़ाकर भी सर, वो टीचर है ना। मतलब सोशल पॉइंट है और दीन, मतलब इस्लामियत, क्योंकि मेरे टॉपिक भी हैं और इस्लामिक स्टडी में मैंने मास्टर्स किया है, तो बस दीनी जो है। कोई फिर आपका कोई फेवरेट आलिम दीन जिसको सुन के रूह को तस्कीन मिलती हो? बहुत सारे हैं। नहीं, एक जैसे कोई फेवरेट? मौलाना तारिक जमील। अच्छा, तारिक जमील, ये ज़बरदस्त, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। आगे बढ़ना। अब ज़रा मैं फुरकान साहब के पास आता हूँ। फुरकान साहब, लॉयंस क्लब को भी आप देख रहे हैं? जी, मैं 30 साल से वाबस्ता हूँ लायंस क्लब से मुस्तकिल। क्या करता है ये लायंस क्लब? वैसे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी NGO है, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। सियासत या चीज़ों पर नहीं बोलती। तो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के कराची में, पाकिस्तान में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। स्पेशली मेलविन जॉन फेलो, जो मेलविन जॉन जो था वो नाबीना था, तो आई पर बहुत काम होता है लायंस क्लब में। मेडिकल कैंप्स हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और परमानेंट प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत सारे हैं जिसमें डिस्पेंसरीज चल रही हैं, स्कूल्स चल रहे हैं। अच्छा, और डिज़ास्टर में भी हम लोग फिर कोई होता है तो उसमें काम करते हैं। कितने मेंबर्स हैं आपके? वर्ल्ड में 15 लाख मेंबर्स हैं। 15 लाख में कुछ कम ज़्यादा है, तो इस साल मिशन 1.5 पे काम हो रहा है कि ये 15 लाख पूरे करें कम से कम। तो पाकिस्तान से भी माशाल्लाह 3 हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर रह चुके हैं, जिसमें एक नीलोफर बख्तियार साहब हैं जो मिनिस्टर भी रही हैं, सेनेटर हैं इस वक्त, बहुत अच्छी खातून हैं। बहुत जिस तरह रोटरी क्लब काम कर रहा है इसी तरह असल में एक ही है, पोर्टफोलियो दोनों का एक ही है, बल्कि ये सुनते हैं कि कुछ 2-4 साल में ये मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, रोटरी लायंस में आ जाएगा। आपकी कोई लेकिन उनका ज़रा सा फ़र्क है, मैं ज़रा सा माजरत के साथ, कि वो ग्रास रूट लेवल पर ग्राउंड पे काम नहीं करते रोटेरियंस। हम लोग जो है वो सैलाब में पानी है भी उतर जाते हैं। हाँ, ये फ़र्क है। ये है डिफरेंस। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मैं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं हर ओहदे पर आऊँ, मुझे सारे अच्छा, नशे व फराज पता है। किसी कोई फिर आपका कोई फेवरेट सियासतदान? सियासत से मेरी कभी कोई ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं। अच्छा, तो अब तक मेरा कोई फेवरेट सियासतदान नहीं है। ओह, हाँ, मुझे कोई समझ नहीं आता, पहले क्योंकि आजमा के देख लिया। पहले के बता दें आप, पहले के भी बता दें। फौज का जर्नल? जी बिल्कुल। हाँ, ये बता दें। जो क्योंकि मैं कारोबारी हल्का से भी मुंसलिक हूँ, सबसे पुरसुकून दौर जो गुजरा वो परवेज मुशर्रफ का गुजरा। ठीक है, ओके, वो अपनी मेरी रीडिंग है, उससे किसी का जी कोई लेना देना, आपका अपना पॉइंट मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। कोई इख्तिलाफ मैं नहीं तो है। एक जनरल बात कर रहा हूँ, और एक अक्सरियत आपको कराची में यही कहती मिलेगी कि यार वो दौर अच्छा था। तो ना काफ़ी उसमें सुकून रहा। जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं, मुतमईन है। अपनी मेरी बात कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से जो हो सकता था, जो शम्मा अपने हिस्से की जलाते थे वो जलाई है, इसलिए ज़मीर मुतमईन है। कभी रिग्रेट नहीं है किसी एक बात का भी? नहीं। क्या बात, क्या बात बहुत है। सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर जो हमने सोचा था उससे गुनाह तो हमने पा लिया। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि कई दफ़ा मेरा कोविड में मैं जाके आया हूँ वापस, तो मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह का शायद कोई काम लेना है कि मुझे रखा। तो मुझे इस फील्ड में 35-40 साल हो चुके हैं, तो अपनी हद बहुत तक, अच्छी चीज सुनी। और लोगों को भी यही कहता हूँ कि अपने हिस्से की क्षमा जला दें। अच्छा, एक इतना सा ना समझें कि ये एक हमने किसी ने जिंदगी में इंस्पायर किया, चाहे वो जिस भी शोबे से वापस नहीं, एक होता है मुझे मेरे वालिद ने इंस्पायर किया, मुझे मेरी वाइफ ने इंस्पायर किया, या टीचर ने, मेरे कि जिससे आप मुतासिर हुए हो। हाँ, उसमें मेरी जो कुर्बत रही ख़ास तौर से, उसमें
अब्दुल एदी साहब जबरदस्त। और हकीम सईद साहब, इनसे इन दो शख्सियत, क्योंकि मेरा इनसे इंटरेक्शन रहा डायरेक्ट। ठीक है। और शहादत से आखिरी एक हफ्ता पहले मेरी उनसे फोटो भी है उस वक्त की, बड़े यादगार। हमने एक चीफ गेस्ट बुलाया था एक तकरीब में, तो वो आए थे। उनका बड़ा शदीद सदमा और अफसोस रहा मुझे। और एदी साहब तो खैर एक मलंग बादशाह आदमी थे। उनकी तो यानी उनकी मौजूदगी में मेरे हाथ लरस रहे थे। एक सेंटर उन्होंने हमें दिया था कि आप रन करें सब्जी मंडी वगैरह। तो मैंने कहा आप कब आएंगे, तशरीफ लाएंगे इफ्तिताह के लिए? बोला कल। विद इन 2 डेज उन्होंने वो पूरा डेवलप कर दिया। यूँ होता थे उनके काम ना। तो मैंने कहा इफ्तिताह करें, हमने रिबन वगैरह रखी। मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्यों करूँगा, आप करो। उन्होंने इफ्तिताह मुझसे करवाया। जबरदस्त। तो ये बड़ा ही होती है। स्कॉलर्स में अगर आप नाम लें तो मैं डॉक्टर असरार अहमद से बहुत बड़ा ज़्यादा, नाम। अच्छा उनसे भी मेरा इंटरेक्शन रहा। क्या बात है। और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनके रहा लिए तो डायरेक्ट। शायद अगर ये कहें कि उनकी तालीमात का फैज़ आज तक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा और चलता रहेगा। पाए के उसमें झोल नजर नहीं आया कहीं अब तक किसी को भी। आप देखें किसी ने कभी उनकी किसी बात पे उंगली उठाई? नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि हमारे इस मुआशरे में बचना आसान नहीं इंतजार, हाँ बिल्कुल मुंतजिर रहते हैं एक कि मौका कहाँ से मिल जाए लोगों बस को तंग एक- करें। हाँ जी। हाँ। अच्छा, क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से लगाव रहा? कोई ख़ास नहीं। अगर आपको, फुरकान साहब को एक दिन का सीएम बना दिया जाए, सूबा दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि 24 घंटे आपका इख्तियार रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला काम आपका? मैं 24 घंटे में पाकिस्तान में माजरत कर लूँगा। कुछ भी नहीं करेंगे? क्यों? कोई एक अच्छा खैर का काम नहीं करके जाएंगे? नहीं, वो कर रहे हैं, कोशिश तो करें ना अच्छा, आप वो अपनी। कर रहे हैं, उस लेवल पर कर रहे हैं। उसके लिए सीएम बनना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये ऑफर ही ठुकरा देंगे? जबरदस्त। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ लोग अपने आप में अंजुमन होते हैं, उनको किसी ओहदों की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि जो हम अपने हिस्से का काम करें और हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन है हमें, हम क्यों और कुछ कहते हैं जी मुझे इसे बना के दें, मुझे 2-4, और वो करोड़ों रुपए, जो कि हमारी पॉलिटिक का जो स्ट्रक्चर है सियासत का, उसमें भी यही हो रहा है कि सेनेटर बनना है जी, इतने हैं। और जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे में फिर लोग देख के अट्रैक्ट करते हैं, आते हैं, आपके साथ आते हैं, काफिला बनता जाता है। चलें शबनम, आप बताइएगा, आप बड़ी खामोश बैठी हैं, कैसा रहा ज़िंदगी का सफ़र? कोई आपकी ज़िंदगी में कोई पछतावा, कोई रिग्रेट? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी। और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए भाई, रिग्रेट नहीं है मुझे तो बहुत सारी चीज़ों पर रिग्रेट है। नहीं, बहुत अच्छे लोग आए मेरी जिंदगी में। और सिर्फ लोगों का नहीं है रिग्रेट, आपकी जिंदगी में हर वो एक चीज जो आप कोई गलती खुद भी कर लेते हो बाज़-औक़ात। नहीं नहीं, आज तक के कभी अच्छा, कोई ऐसी मुझे गलती मुझे नहीं मुझे यार ये फला वो एयरलाइन बनानी थी यार, नहीं बना सका। हाँ, काश ये कर लेता तो फिर ये हो जाता। नहीं नहीं, काश में मैंने जिंदगी नहीं गुजारी अपनी। क्या बात है। काश में हकीकत की नहीं, दुनिया में हकीकत की दुनिया यही में होना रहती हूँ। चाहिए, सही बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि जबरदस्त। आपको किसी ने मुतासिर किया कभी ज़िंदगी में, किसी की शख्सियत ने? मुझे तो सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब ने मुतासिर किया, इनके काम ने। ओके, क्या बात है। इनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा और सीख रही हूँ। और Amazing। जिस तरह से ये नेक काम करते हैं और इस तरह से आगे मैं भी यही करना चाहूंगी। शायद मैं इनकी तरह से तो ना कर सकूं, हाँ, कोशिश कर सकती लेकिन है ना आप कोशिश उतने जरूर उस करूंगी। पे तो। जी रौनक बिखेरते हुए, ये तो मुझे भी मालूम है। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बहुत खूबसूरत बात की। और फिर असलम साहब, सानियात हो गए, दोबारा ना हो, हम कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन हम हुकूमत भी पावर में रहेगी, सहूलतें देगी, और कुछ दिन आवाम भी हम बोलेंगे अच्छा यार कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 6 माह, यस, 6 माह बाद फिर हम मुश्किल। वैसे के वैसे, वापस उसी ट्रैक पर आ जाएंगे। फिर वो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगी, जो प्रिकॉशंस के वो जो पेपर है वो भी हम फाड़ देंगे, हिदायत सब खत्म। सर 6 माह तो आपने बहुत ज़्यादा बताया। अच्छा, ज़्यादा बता दें। बिल्कुल सही, यही मेरे मैं तो हफ्ते और महीनों की बात करूँगा, बल्कि हफ्ते ही कहूँगा। माहौल ऐसा है, भूल जाएंगे हम सब। भूल जाएंगे सब कुछ। माहौल ऐसा है, वक्त ऐसा है। आज- हम मैं अपनी भी आज जाती भी बात एक कर बड़ी तादाद ऐसी है जो इनको एहसास ही नहीं है। वो हंसते हैं अपना, वही होटलों में 300 गाड़ियां खड़ी हैं सुपर हाईवे पे, बिल्कुल, ये दो सब- दरिया मैं पे। आपको अभी भी बात बताऊं। इसके अलावा ये जो ये बात का शॉपिंग जिक्र मॉल्स किया वगैरह हैं, कि वही हाल है। हफ्ते की 17 तारीख को आग लगी गुल प्लाजा में, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोग्राम, मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े प्रोग्राम जो कि संडे को होने थे, वो बराबर हुए, वो कैंसिल हो सकते थे।
और बड़े बड़े नाम उसमें, शहरी भी, मुकामी भी, सब उसमें शामिल थे। लेकिन वो कैंसिल बड़े पैमाने करके पे वो प्रोग्राम मेरा जो ये तो कैंसिल मेरा हो सकते थे ना। तो अगर दिल में दर्द होता या महसूस करते तो वो नहीं होते प्रोग्राम। कैंसिल होना क्या, किसी प्रोग्राम का कैंसिल होना क्या चीज होती है? किसी होटल में, किसी बड़ी जगह पे, किसी ओपन जगह पे, कोई भी शो नहीं, एक चीज है, कोई इम्पोर्टेंट अगर चीजें हैं जो कमिटेड हैं, जो होनी चाहिए थी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई तफरी, कोई आपकी इंजॉयमेंट, कोई ऐसी, वो कैंसिल हो वो सकती नहीं, थी। वो तफरी और एंजॉयमेंट के हवाले से ही थे। हाँ, ओके, कोई सर्टिफिकेट, कोई किसी को डिग्री देनी थी, एक बार मैं बात कर रहा हूँ, या कोई सर्टिफिकेशन करनी थी, या उसको कोई अवार्ड देना था, वो सब कैंसिल हो सकता है, लेकिन वो बराबर हुए। तो मैंने इसलिए तो आपसे कहा कि आप तो 6 महीने तो बहुत कह रहे हैं, यहाँ तो 24 घंटे नहीं गुजरे थे और लोग अपनी वापस उसी अदा में लगे। तो वो तो कुछ लोग थे, ये नहीं कि मैं अपनी बात कि मैं बहुत कोई आलिम फाजिल आसमान से उतर के आया, मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना। सीखा क्या हमने इससे? अल्लाह करे कि हम सीख लें। सीखा तो आज तक हमने कभी कुछ नहीं, हादसों से हमने कभी भी कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नहीं सीखा भुलाने के अलावा। हमने ये सीखा पर भुला जाओ उसको, पर अपना देखो कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है, हम खाली ये जी देखें। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इसको कंक्लूड इस तरह करें कि आगे क्या करना चाहिए। बस ये, और करना चाहिए का मतलब यहाँ से उठें तो ये अहद करके उठें कि उसको करने के लिए भरपूर कोशिश करनी बस ये बात है। कि आइंदा ये ना हो। उम्मीद हम अच्छे की रखते हैं और अच्छे की उम्मीद रखनी भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है हम शायद पस्ती का शिकार हो चुके हैं। हम तो वो जो बच्चों के पार्क्स हैं वो हड़प कर जाते हैं। आप तो गिरलों की बात करते हैं, यहाँ पे वो जो लैंड एम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं हम वो हड़प कर जाते हैं। बिल्कुल सही। शायद अब हमें ये तमीज़ भी नहीं रही कि ये जो पैसा है ये ज़कात खैरात का है, ये जो पैसा है ये किसी यतीम या बेवा का है, हमें अब इससे लेना देना नहीं है। अब हम कहते हैं जी जान दे। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि ये जो जान दे वाला सीन है ना सर, इससे फिर इंसानियत कहाँ गई, हमारे अखलाकियात कहाँ गए? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो फिर उनकी तालीमात कहाँ गई? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। हम फिर क्या मुंह दिखाएंगे मैशर में? तो क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं मैसेज लूँगा सारे मेहमानों से। पहले नजमा आप क्या मैसेज देंगी कि हम दोबारा खड़े होंगे, दोबारा सब चीज़ें बनेंगी, दोबारा गुल प्लाजा भी बन जाएगा, फिर हम किसी नाअहली नाकामी के ज़द चढ़ जाएंगे? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने हिस्से की शमा जलाएं और इस पर अमल करें कि हम अपने तौर पर क्या कर रहे हैं। हमें अपने तौर पर, यानी देखें, अगर हम चाहेंगे कि हम सबको संवार दें, सबको ठीक कर दें, नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर से शुरू करें और अपने आप से शुरू करें। तो फिर जब हर इंसान इस तरह करेगा तो उम्मीद की दुनिया कायम है। सबसे पहले जी आप पहले अपने आप को ठीक करें। जी असलम साहब, आप, मैं इस हादसे के हवाले से जिक्र करूँगा कि एक मार्केट की जो इंतज़ामिया, बल्कि मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इसलिए कि लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त मार्केट जो जली उसके जो ज़िम्मेदारान थे, इंडोर जो ओहदेदारान थे, कौन थे? नाम लेना। पास्ता था, तनवीर पास्ता और दूसरे। इसी तरह मैं ये चाहूँगा कि वो अपना क़िबला दुरुस्त करें, और ये मैं वार्न करने जा रहा हूँ इसलिए कि हम आपको कुछ करने के लिए जा रहे हैं कराची वाले, ठीक है, कि जितनी भी मार्केट्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हदूद अरबा सही कर लें और तैयारी कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हादसा हो तो वो क्या करेंगे। सबसे पहले उन्हीं की गिरफ्त आएगी। और आज मैं ये चैनल पर बैठ के ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जहनों में अपने रख लें कि इंशाल्लाह आइंदा हम वो मुहिम करने के लिए जा रहे हैं कि वो हम इंतज़ामिया पे हाथ रखेंगे। हम ऊपर के जो जिम्मेदारान हैं शहरी उनको नहीं पूछेंगे, लेकिन वहाँ के इंडोर जो इंतज़ामिया, हम सबसे पहले उनसे खबर लेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि ये आप यहाँ के सदर थे, आप यहाँ भत्ता भी लेते थे, पैसे भी लेते थे, खर्चा भी लेते थे, 100 दुकानों की आप 500 दुकानें करते थे वहाँ पे बैठ के, वो सब आपकी जेबों में आता था, आप क्या करते, वो कैलकुलेशन हम आपसे लेंगे, आपसे हम पूछेंगे। तो अपना क़िबला खुदारा दुरुस्त कर लीजिए, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। चलें जी, आपसे मैं चाहूँगा कि हम इसको इख्तिताम की तरफ ले जाएं। और विल का मुजाहरा हमने माजी में भी किया, हमने बड़ी दुकानें जलते देखी, बड़े नुकसान होते देखे, हमने इज्तिमात में धमाके होते देखे, लेकिन फिर हम आगे की तरफ बढ़े। क्या कहेंगे? मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि हमें
اویئرنیس دینی ہے. اویئرنیس صرف لوگوں کو نہیں دینی, ہمیں اداروں سے بھی ملنا ہے, اور ہم نے اس کو پلان کیا ہے کہ اداروں سے مل کے, اگر نہیں تو ہم جبراً امپلیمنٹ کروائیں کہ ہر جگہ گھر سمیت, جیسا اور ممالک میں ہوتا ہے. میرا ایک اور ملک سے کچھ کنیکشن ہے, وہاں جانا آنا رہتا ہے میرا. وہاں گھروں میں گھس کے فائر ایکسٹنگوشر چیک کرتے ہیں کچن میں اپ ڈیٹڈ فائر ایکسٹنگوشر ہے یا نہیں. گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر چیک ہوتا ہے کہ ایکسپائر تو نہیں ہے, اور لوگوں میں خود ہی اویئرنیس پیدا ہو یا تو جاتی ہے. لگے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر ایک رہے. دفعہ کرنے کی بات ہے, لوگ ہیبیچول ہو جائیں لوگوں گے, کو چلانا نہیں ہو آتا. جائیں گے, لوگ کریں گے. اچھا ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, اگر میں آپ کی بالکل دی جاتی ہے. کہ یہ ہم نے کس طرح ہو, یہ awareness ہمارے classes وقت دی میں جاتی اسکول ہیں. میں سول ڈیفنس کا سرٹیفکیٹ کورس ہوتا تھا اسکول کے دوران, گورنمنٹ کراتی تھی, اب نہیں ہوتا. ہونا چاہیے, یہ سب کو یہ پتہ سب ہونا چیزیں چاہیے. فائر فائٹنگ ہلکی پھلکی یہ چیزیں سب آنی چاہیے, اور اس کو اس پروگرام کے توسط سے اس کو فروٹفل بنانے کے لیے آگے کیا کرنا ہے یہ سوچیں. Yes. ٹھیک ہے, لوگوں کو قائل کریں, معقول کریں, پابند کریں کہ بھائی یہ چھوٹے یہ چھوٹے شہر خرچے وفاق, ہیں. یہ شہر اس وفاق میں- کو دے دیں. جی میں تو اس کے فیور میں ہوں. اچھا, ہیں؟ اب بہت ہو گیا, اب بہت ہو گیا. صحیح کہہ رہے کیونکہ دنیا کے کسی اور ملک میں سب سے پہلے جو منسلک ہیڈ ہوتا ہے ادارے کا وہ ریزائن کر دیتا ہے. یہاں کلچر نہیں ہے یہ ابھی, یہاں ابھی یہ یہاں کلچر کلچر نہیں ہے, کہتا ہے میں کیوں دوں. تو ایک تجربہ یہ بھی کر لیا جائے جہاں اتنے 75 سال میں کھیل کھیلے ہیں. 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے. پالیٹکس میرا سبجیکٹ نہیں ہے, کیا بولوں. اچھا چلے Change the topic. چلے جی, بس اسی end کرتے امید ہیں. کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے, اور آئی ہوپ کہ کوشش کی کہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں, آپ لوگوں کے ٹوٹتے ہوئے گھروں کو بچائیں, اور جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں, اور رائٹ انفارمیشن آپ تک پہنچائیں, اور پھر آپ صبر کریں. سر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائیں. آج کی جنریشن میں صبر نہیں ہے. شاید ہم بھی بڑا غصے والے تھے کبھی, یا آج بھی ہیں, ہم سے بھی صبر نہیں ہوتا. انسان غلطیاں کرتا ہے, فرشتہ تو نہیں ہے نا, لیکن خطائیں نہ کریں. غلطی کر لیں چھوٹی موٹی تو معاف ہو جائے گی, لیکن اتنا بڑا بلینڈر نہ کریں کہ وہ معاف نہ ہو, اور پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں. ہم ایسے بہت سارے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں میری بیوی مجھے بچے نہیں دے رہی, میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, میں نے تو صرف یہ بات کہی تھی. تو پھر یہ نہ کریں, پہلے سے ہی اپنی زندگی کو ایسا سموتھ رکھیں کہ یہ واقعہ نہ ہو, یہ معاملات نہ ہو. مجھے ساجد حسین میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا. چائے کا ایک کپ, اتنی چھوڑی مسکراہٹ,